So first to rate radioactivity. Radioactivity is the phenomena of spontaneous disintegration of heavier nuclei into smaller Phenomena. phenomena of spontaneous disintegration of heavier nuclei into smaller nuclei with the release of alpha, beta or gamma particles. Bracket में लिख लो, by spontaneous it implies that. By spontaneous it implies that disintegration takes place. By spontaneous it implies that disintegration takes place without help of any external agent. Without help of any external agent. So you can write radioactivity rate, radioactive disintegration rate is independent of radioactive disintegration rate is independent of the external conditions like temperature, pressure, etc. So rate. External conditions like temperature, pressure, etc. and depends only on the number of undecayed nuclei present in the sample. Next to write Rutherford-Soddy's relation. Rutherford के spelling तो आते हैं Soddy, SODDY. Rutherford-Soddy's relation. Rutherford-Soddy's relation. On the basis of experiments performed. On the basis of experiments performed. Rutherford and Soddy's expressed laws of radioactive disintegration as
expressed laws of radioactive disintegration as? First is radioactivity is spontaneous process. Which does not depend on. Radioactivity is a spontaneous process which does not depend on any external conditions. Like pressure, temperature, etc. Disintegration is based on the law of probability, which implies that it is impossible to predict which particular nuclei will disintegrate in a sample or in a given time interval. Which particular nuclei will disintegrate in a sample or in a given time period. Second is during radioactive disintegration, either alpha or beta particle is emitted. Either alpha or beta particle is emitted. Both these particles are never emitted simultaneously. The emission of alpha particle decreases charge by 2e and mass by 4 AMU. Whereas emission of beta particle will increase charge by plus e. Excuse me, sir. Repeat करना alpha particle. Emission of alpha particle will decrease charge by 2e and mass by 4 AMU, whereas emission of beta particle increases charge by plus e and mass remains almost unchanged, because electron निकला है तो electron का mass तो negligibly small होता है. से increase by plus ही था ना? Increases by plus e. Next, look, gamma decay is not an independent decay.
Gamma decay is not an independent decay and follows alpha or beta decay. Neither charge nor mass changes in gamma decay. Neither charge nor mass changes in gamma decay. पैराग्राफ में लिखो. बता दूं Mathematically, एक्सक्यूज मी सर हाँ जी. सर आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला था Gamma decay is not an independent decay and generally follows alpha or beta decay. Neither charge nor mass changes in gamma decay. नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि टाइम के साथ नंबर डिक्रीज कर रहा है. सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी डिक्रीज कर रही है. dn by dt is rate of disintegration. Rate of disintegration depends upon number of undecayed nuclei in the sample. Because ये नंबर कम होता जाएगा तो dn by dt भी कम होता जाएगा. तो नेगेटिव साइन signifies that number of undecayed nuclei as well as rate of disintegration is decreasing with time. And lambda is constant called disintegration constant. Lambda is constant of proportionality. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dn by n is equal to minus lambda dt. इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को. dn by n की इंटीग्रेशन क्या होगी? log n. log n minus lambda t plus constant of integration c. Initially boundary conditions. अगर number of undecayed nuclei n naught है, मतलब इसे if at जब t is equal to 0 मतलब जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया. So if at t is equals to 0, n is equals to n naught. ये वैल्यूज अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आ जाएगा? c is equal to log n naught तो c की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट 2 in 1. क्या बना? log n
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये स्टेप एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? e raised to a power की पावर माइनस लैम्डा t। is equal to n by n naught. इधर से लॉग हट गया, तो मेरे पास आ गया n इज इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं डिके लॉ या रदरफोर्ड-सॉडीज रिलेशन। सर रदरफोर्ड ने इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। क्या चीज? सर रदरफोर्ड ने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। दोबारा पूछो क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा हूँ, सर रदरफोर्ड ने इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था कि मतलब ऐसा ही हाँ, है? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। रदरफोर्ड का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा था गीगर म्यूलर काउंटर, मतलब उसने गीगर म्यूलर काउंटर बनाया था, गीगर के नाम से था वो। तो उसने काउंटर बनाया था जिससे आप देख सकते हो कि किसी सैंपल में से कितने अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं पर सेकेंड। गीगर को उसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, फॉर मेकिंग दैट काउंटर। अच्छा, अब आपने जो पढ़ा हाफ लाइफ, टाइम इन विच नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब n कितना हो जाए? इनिशियली कितने थे? n naught by 2 हो जाएगी. तो कितने टाइम में n नॉट बाय 2 हो जाएंगे? Time in which number of undecayed nuclei reduces to half. हाफ डिके कर गए या हाफ बच गए? इसका मतलब है इन t is equals to t half, n is equals to n naught by 2। ये वैल्यू इधर मैं पुट कर दूं अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 is equals to, लॉग लेंगे तो log to the base e है सारी जगह। सो log 2 की वैल्यू 0.693, बिकॉज अगर log to the base 10 होता तो आप 0.3010 लिखते, बिकॉज आपने शायद केमिस्ट्री में ये वैल्यू याद कर रखी होगी। So 0.693 by lambda. क्लियर है सबको कैसे की डेरिवेशन? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। Excuse me, sir. हाँ जी। सर जो हमने जैसे टनल इफेक्ट किया था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी लग सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए? नहीं, मतलब लग सकता है, तो उसका फायदा नहीं है, बिकॉज ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट होते हैं, वो तो हाईली प्रोबेबल इवेंट है। तो फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे उन्होंने जब LHC में प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की कोलिजन की, तो दे से दैट अर्थ विल एनिहिलेट इन दिस एक्सपेरिमेंट इज 1 in 10 raised to power 17। उसका मतलब ये था कि हो सकता है
कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट 10⁻17 टाइम्स करते हैं तो विद इन अ मिनट ये पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, इंक्लूडिंग ऑल द पॉपुलेशन। अर्थ ही खत्म हो जाएगी यहाँ से, यूनिवर्स से। तो दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, 1 in 10⁻17। साइंटिस्ट से इट्स अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी हो सकता है पहली बार ही करते हो और ये हो जाता है एक्चुअल में, बट वो ऐसे रिस्क लेते हैं बिकॉज दे ऑलवेज हैव अ फियर इन देयर माइंड कि हो सकता है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इससे अर्थ ही ना बचे। तो अगर आप इंडियन चैनल्स देखोगे तो आज तक ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था कि महामशीन से दुनिया खत्म हो जाएगी, बट द टॉक्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हो सकती है, ये नहीं कहा था हो जाएगी। तो अब जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हो, दैट्स अ हाईली प्रोबेबल इवेंट। हाईली प्रोबेबल बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है रफली? 1 in 10⁻³ to 1 in 10⁻⁴। 1 in 10⁻³ to 1 in 10⁻⁴ का मतलब होता है कि अगर आपने 1000 इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी दे दी है तो उनमें से एक तो निकल ही आएगा। सो दैट्स द प्रोबेबिलिटी। सो 1 in 10⁻³ to 1 in 10⁻⁴। ऐसा नहीं है 10 को दी तो 10 के 10 निकलेंगे, 10 को एनर्जी दोगे तो हो सकता है एक भी ना निकले, 1000 में से एक निकलता। तो इट्स फिजिक्स में इट्स स्टिल अ हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट। तो इसमें टनल के इफेक्ट को लाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स में काम करते हैं। ओके सर। राइट। यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन मतलब लैम्डा के यूनिट्स बेसिकली। यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। radioactive disintegration rate is measured in terms of disintegrations per second. Is measured in सर एक terms बार of रिपीट कर दो। rate of disintegration या disintegration rate of nuclei is measured in terms of disintegrations per second, is measured in terms of disintegrations per second. The SI unit of radioactivity is becquerel. Becquerel. सर एक बार रिपीट कर दो। SI unit of radioactivity is becquerel. BECQUEREL। और सिंबल होते हैं कैपिटल BQ। becquerel। One becquerel is one disintegration per unit, disintegration per second. Commonly used जहाँ 2 यूनिट और होते हैं because there is a very small unit. 1 disintegration per second is a very small rate of disintegration. Commonly used units are Rutherford. Commonly used units are Rutherford and Curie. 1 Rutherford is 10⁻⁶ disintegrations per second. It's much bigger unit. And 1 Curie is
इसका सिंबल RD, इसका CI. So 1 Rutherford and 1 Curie. So you can say 1 Curie is 3.7 into 10 raised to power 10 becquerel. इन दोनों का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा. बैक्यूरल, बैक्यूरल का सुना है पहले? बैक्यूरल वाज द वन हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी. ये दोनों तो बाद में आए, बिकॉज यही साइंटिस्ट था जिसने 1896 में रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर ली थी. आप अगर ये साइंटिस्ट देखोगे ना, से शुरू वाले मतलब बिगिनिंग 1900 से लेके 1915-20 तक, फिजिक्स में जिसको भी नोबेल प्राइज मिला, ये सब रेडियो एक्टिविटी पे जनरली रिसर्च करते थे. कुछ ना कुछ एटम न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो सबको नोबेल प्राइज उसी के लिए मिला, रेडियो एक्टिविटी पे काम करने के लिए, या न्यूक्लियस या एटम्स पे काम करने के लिए. और इन सब की जनरली एक और खासियत भी थी, एटम पे जो काम करते थे वो तो बच गए, न्यूक्लियाई वाले जनरली सबके रेडिएशन डैमेज हुए और सब 30s तक जाते जाते, कोई 35, कोई 37, 38 इस एज तक तो सबकी डेथ भी हो गई थी. बिकॉज इनको उस टाइम पे नहीं पता था कि रेडिएशन डैमेज क्या होता है, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड टू बी द पायनियर साइंटिस्ट, जो रेडियो एक्टिविटी को जिन्होंने पढ़ा, समझा, दूसरों को समझाया. बट इन्हें ये नहीं पता था कि दीज रेडिएशंस कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी. तो बिना प्रोटेक्शन के क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च करते थे, तो एवरीबॉडी डाइड ड्यू टू सम काइंड ऑफ रेडिएशन डैमेज. बीट मैडम क्यूरी का हस्बैंड, मैडम क्यूरी की बेटी, यहाँ रदरफोर्ड, ये सब. रदरफोर्ड इनफेक्ट ज्यादा दे रहा था, बिकॉज रदरफोर्ड ने बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की जगह एटम्स पे काम किया था. अदरवाइज ऑल दीज साइंटिस्ट डाइड एट अ वेरी यंग एज. इसके आगे नोट में लिखो 1-2 पॉइंट्स. फर्स्ट यू राइट. अच्छा, अगर एक हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाते हैं, तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे? 1/4. 1/4. 3 के बाद 1/8. तो केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला क्या लिखा था? n/n0 इज इक्वल्स टू हाफ रेज टू पावर n. लिखा था ना फॉर्मूला? Yes. तो यू कैन राइट, इसको लिख लो फिजिक्स में भी. Radioactive disintegration follows exponential law. Thus, number of सही में रिपीट कर दो. रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज disintegration follows exponential law. Follows exponential law. Thus, after n half-lives, small n. Thus, after n half-lives, the number of undecayed nuclei are capital N such that अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. Yes. लिख सकते हैं ना ऐसे भी, T/d/2. Next. The rate of disintegration is proportional to number of undecayed nuclei in the sample. Therefore, if A naught denotes initial rate of disintegration,
then after time t, the rate of disintegration is A such that सर ए नॉट इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या बोला था? A naught is initial rate of disintegration, then rate of disintegration after time t is same formula इसमें भी बन जाएगा. A by A naught is n by n naught और half into t raised to power half upon capital T. Also आप ऐसे भी लिख सकते हो. Which implies that decreases exponentially with increase in time. कि एक्सपोनेंशियल डिके होगी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की भी, कि सैंपल अगर बड़ा है तो पहले जल्दी जल्दी डिके करेंगे और फिर वो कम होते जाएंगे. आप इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हो दोनों को, मतलब n का और a का ग्राफ सिमिलर ही बनना है वैसे तो, बट अगर मैं n की टर्म्स में बनाऊं t is equals to 0 पे number is n naught. After 1 half life this would be n naught by 2. After 2 half lives it will be n naught by 4 and so on. और 0 कब होगा? At infinity. So there is exponential decay law. Similarly a का भी मैं बनाता तो ऐसे ही बन जाता, इधर a naught आ जाता सिर्फ. कि अगर a और t का ग्राफ आएगा तो भी ऐसे ही बनाओगे. And so on. So both follows exponential decay laws. अगर मैं आपसे बोलूं से एक सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है 4 days, 6 days के बाद कितना बचेगा? इनिशियल नंबर n नॉट है, 6 days के बाद गैस करना हो तो किस पे गैस करोगे? एमसीक्यूज में आते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन. हाफ लाइफ 4 days है, इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई n नॉट है, तो 6 days के बाद कितने होंगे? गैस करना है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा. कितनी वैल्यू बताओगे आप? एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचे थे? 3/4 एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचे थे? n नॉट बाय 2 और 2 के बाद n नॉट बाय 4. तो जो भी आंसर मार्क करना है वो n नॉट बाय 2 और n नॉट बाय 4 के बीच में ही होगा, बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ ये 4 days है तो ये 8 days है, तो मैं 6 days के बीच में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप गेस कर सकते हो ना, पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. और दूसरा एक्सपोनेंशियल डिके, हर बार हाफ की बात नहीं करेंगे. एक्सपोनेंशियल डिके होता है जैसे मैं बोलूं से 10 days में 10% डिके कर गया, तो 20 days के बाद कितना बचा? मेरे पास मान लो इनिशियली 100% है,
10 डेज में 10% डिके कर गया, तो कितना बचा 10 डेज के बाद? 90% बचा। 90%। 90%। अगले 10 डेज में 90 का 10% डिके करेगा। तो 90 का 10% मीन्स जो बचा उसका 10% डिके करना है ना। तो 90 का 10% मीन्स 9% और कर गया, तो 20 डेज के बाद 81% बचेगा। और मैं 10 डेज कह देता तो फिर 81 का 10% मतलब 8.1%। तो वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होता जा रहा है ना। यही तो हमने कहा कि दिस ऑल्सो फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिके लॉ, कि पहले 10 दिन में अगर 10% डिके कर रहा है, अगले 10 दिन में 9% कर रहा है, फिर 8.1 कर रहा है, तो वो कम होता जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल लॉ का मतलब ये होता है। समझ में आए? इट फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिके लॉ। वो परसेंटेज कुछ भी दे सकते हैं, 5%, 6%। मान लो बोले एक दिन में 5% डिके कर गया, तो एक दिन के बाद 95 रह गया, फिर 95 का 5% डिके करेगा अगले 5 डेज में। 100 का 5% नहीं डिके करेगा। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो अगर एवरेज लाइफ निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हो? तो हाफ लाइफ होगी, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। हम एवरेज लाइफ कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास अगर मैं लूं से t इज इक्वल्स टू 0 पे, जब मैंने सैंपल लिया तो इनिशियली नंबर था n0। मैंने थोड़े टाइम के बाद देखा से आफ्टर टाइम t, ये नंबर बड़ा होगा या कम हो गया होगा? कम हो। कम हो गया होगा, ये नंबर हो गया n। मैंने फिर एक स्मॉल फ्रैक्शन के बाद देखा dt के बाद, ये नंबर हो गया n माइनस dn। मैं आपसे पूछूं ये जो dn न्यूक्लियाइड डिके की स्मॉल टाइम dt में, इनकी एज क्या थी? dt dt इन dn न्यूक्लियाई की एज क्या थी? एक की, किसी एक की, और फिर टोटल dn न्यूक्लियाई जो डिके की उनकी एज क्या थी? t या dt? t अब इसको क्लासिकल में समझो तो आपको जल्दी समझ आएगा। मान लो मैंने आज के दिन से एक पर्टिकुलर सिटी में जो लोग पैदा हुए वो है 1000 आज के दिन में। मतलब आज से मैंने नोट करना शुरू किया तो t इज इक्वल टू 0 पे 1000 थे। मैंने 70 इयर्स के बाद देखा तो ये नंबर रह गया था 940। फिर मैंने 70 इयर्स और 1 डे के बाद देखा तो ये नंबर रह गया था 938। तो ये जो दो लोग मरे इनकी एज कितनी थी? 1 डे या 70 इयर्स? 70 years। 70 years। तो ये जो dn डिके की है इनकी एज t है ना, सबकी एज t, तो सबकी मिला के कितनी? tdn। अगर मैं बोलूं इन सबकी एवरेज एज निकालो तो आप कैसे निकालते? सबकी एज को ऐड करके किससे डिवाइड कर देते? 1000। 1000 से। तो यही हम एवरेज एज निकालने के लिए यूज करते हैं कि जब एवरेज एज निकालनी है तो dn की एवरेज एज तो है, टोटल एज तो है tdn, सबकी निकालनी है तो इंटीग्रेट, यही एवरेज एज होगी। तो हम इसको कल करेंगे एवरेज एज निकालने का मेथड, कि एवरेज एज कैसे निकालनी है। इसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके 1 बाय लैम्डा आ जाएगी। मतलब हाफ लाइफ थी 0.693 बाय लैम्डा, ये 1 बाय लैम्डा आ जाएगी। सो इस कंसेप्ट को करेंगे, प्लस कल थ्योरी आगे नहीं करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के न्यूमेरिकल्स करेंगे कैसे यूज करना। ये वाला पार्ट पढ़ के देख लेना। एक इसमें ना और टॉपिक है विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डिके। अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट होगा या नहीं होगा, मैग्नेटिक में होगा या नहीं होगा, सिमिलरली बीटा की, सिमिलरली गामा की। तो प्रॉपर्टीज हैं, उसको अगर मैं क्लास में लिखाना शुरू करूंगा तो पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी।
तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे नहीं, बट आपको मैं उसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा कि आप प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना, उसमें कुछ है नहीं समझने वाला, मतलब ऐसे पढ़ोगे तो पहली बारी में सब समझ आ जाएगा कि जैसे अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिख देंगे, मास लिख देंगे, सिमिलरली बीटा का लिख देंगे, गामा की प्रॉपर्टीज लिख देंगे, बट हम अल्फा बीटा गामा डिके को करेंगे। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, डिकेज इंपॉर्टेंट है, सो उसको करेंगे। प्रॉपर्टीज तो रीड कर लेना, कहीं काम आएंगे नहीं, बिकॉज किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा डिके। सो कल करते हैं इसके आगे एवरेज लाइफ और इसी पार्ट के न्यूमेरिकल्स।